Hello everyone, welcome back in today's class. Students, today we will be starting our new chapter, that is circles, chapter 10 for class 9th. Okay, before starting this chapter, circles, we should know what a circle is. Circle is a round figure. It is a round figure. The innermost part, जिसकी डिस्टेंस पेरिफेरल से बिल्कुल सेम रहती है हर एक पॉइंट से, is known as radius. दिस इज़ वेरी बेसिक एंड यू नो इट. ये रेडियस होता है. ये जो पॉइंट आपका होता है, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर हम रेडियस को यहाँ से चलाते हुए एंड इफ वी प्रोसीड इट लाइक दिस एंड इट जॉइन टू द अदर एंड ऑफ द सर्कल, दिस इज नोन एज व्हाट? ओ ए. हियर ओ ए और ओ बी इज द रेडियस एंड ए बी इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड दिस ओ इज द सेंटर, ओ ए इज द रेडियस, ओ बी ऑल्सो इज द रेडियस एंड दिस ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. है ना, बहुत बेसिक है. वी हैव स्टार्टेड इट इन आवर प्रीवियस क्लास. लेट मी ड्रॉ अनदर सर्कल. दिस इज सर्कल and here there are three parts in the circle. This is known as interior of the circle, this is known as exterior of the circle, and this is the region on the circle. Fine. Another thing जो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, we should know it has a chord. Chord is a line segment drawn inside the circle, touching the circle at 2 points, but it is not passing through the center of the circle. This is known as what? Chord. Fine. और अगर ये chord यहाँ से पास होती हुई चली जाती, if the chord is passing through the center of the circle, now this is known as the longest chord. Longest chord, or another name of it, a line which is passing through the center of the circle, touches the circle at 2 points, is known as diameter. Diameter of the circle. Two names are there, longest chord, or we can call it as diameter of the circle. Now this chord is dividing the circle into two equal part. This is chord, it is dividing the circle into two part. This is part 2, this is part 1. This smaller part is known as minor segment. Minor segment. So what is minor segment? Minor segment is the region between chord and the arc. Chord and arc. This is the region. This is the region between chord and this arc. Okay, and this is, because this is bigger in size, so its name will be major segment. Major segment. Fine. Now how can we define? Major segment is the region between chord and the arc. Fine. So this is arc, no? Arc is what? A smaller portion of the circumference. This is known as what? Arc. Or how can we define? Small portion of circle's circumference, or we can call it as peripheral. Okay, this is an arc. So these are the things we should know. Now we will go for segment. We will go for sector. Sorry, segments are over. We will go for the next concept of the circle, that is sector. This is center of the circle. This is radius of the circle. This is also radius of the circle, but we will call them as radii because radius is singular, and if we have two radius, we will call them as singular is radius, and plural of it, when we have more than one radius, then we will call it as radii. Okay. Now we have two radii, OA and OB. The region between these two, this is known as a sector. This is known as what? Sector. So sector
is the region between radii and the arc. Region between radii and arc. Because this is smaller, so we will call it as minor sector, and the remaining this one, okay, this portion is known as what? Major sector. Fine, this is minor sector. The difference between these two, no, see, region between, या here we may take region between chord and arc तो दोनों में सेम है, यहाँ पे भी arc है, यहाँ पे भी arc है, बट सेक्टर के केस में सेगमेंट के केस में ऑलवेज वी विल कंसिडर कोड, और इसके केस में हमारे पास रेडियस आ जाता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड द सेगमेंट, अ वेरी क्लियर एंड फाइन डिफरेंस. ओके, प्लीज टेक दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि कई बार बच्चे सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज होकर ओवरलैप कर देते हैं. Fine, so now we should start our exercise, that is 10.1, which is based upon this concept only. So we will start it now. Get set ready for that. See, a center of a circle lies in the dash of a circle. जो सेंटर होता है सर्कल का वो हमेशा कहाँ पे लाई करता है? एक्सटीरियर में करेगा या इंटीरियर में करेगा? Obviously it will lie in the interior of the circle. A point whose distance from the center of a circle, देखो एक पॉइंट जिसकी लेंथ ज़्यादा है सेंटर ऑफ सर्कल से, देन रेडियस लाई इन द एक्सटीरियर. ये बात बोलने का एक बार मतलब देख लीजिए, आपको क्या बोल रहे हैं कि आपके पास कोई सर्कल है, आपके पास यहाँ पे कोई सर्कल है और कोई पॉइंट है जिसकी जो लेंथ है रेडियस से ज़्यादा है. अगर इसकी लेंथ रेडियस से ज़्यादा है तो पॉइंट विल ऑलवेज लाई आउटसाइड द सर्कल. अगर आपको बोला जाता है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस हुज लेंथ इज लोअर देन द रेडियाई, तो वो पॉइंट हमेशा कहाँ पे लाई करता है? इंटीरियर में. जैसे अगर हमारी रेडियस है 4 और पॉइंट की डिस्टेंस बन रही है 5, तो बट ऑब्वियस है पॉइंट विल लाई आउटसाइड द सर्कल. But if we have radius 3 and we have the length of the point is 3, so that point will lie inside the circle. I hope it is clear to you now. तो इसमें वो कहाँ पे लाई करेगा? It will lie in the exterior of the circle. The longest chord of the circle, हमने बताया था ना, longest chord of the circle को हम क्या बोल सकते हैं? What can we call it as? Diameter. So here we will use diameter. An arc is dash. Arc आपका क्या बन जाता है? When its two ends are the ends of the diameter. आपका arc का क्या नाम दिया जाएगा जब उसके एंड और डायमीटर के एंड सेम जगह पे कट करते हैं? मतलब ये देखिए, ये डायमीटर के एंड है और आपके आर्क के एंड भी यही होते हैं. सी, ये शेप क्या बन रही है हमारे पास? दिस इज व्हाट? सेमी सर्कल. आर्क के एंड यहीं पे है, डायमीटर के एंड भी यहीं पे है. सो व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल. सो वी विल राइट एज सेमी सर्कल हियर. सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड द सेगमेंट. आर्क और किस किस के बीच का रीजन है? वी हैव डिस्कस्ड इट. सेगमेंट जो है हमारा किस किस के बीच का रीजन है? आर्क एंड chord. You will write that here as chord. Circle divide the plane on which it lies. सर्कल जो होता है वो कौन उसको जो सर्कल होता है वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. ये वी हैव डन. एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड ऑन द सर्कल. ये 3 पार्ट होते हैं जिसमें वो प्लेन को डिवाइड कर देता है. कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो सर्कल के बाहर रह जाता है, कुछ ऐसा होता है जो सर्कल अपने अंदर ले लेता है, और कुछ ऐसा हो जाता है जो सर्कल के बिल्कुल ऊपर पॉइंट्स आते हैं. तो 3 प्लेन में वो 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स. गिव रीजन फॉर योर आंसर. लाइन सेगमेंट, इसमें आपको रीजन भी देना है. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर. एक लाइन जो होती है आपको सेंटर को और सर्कल के किसी पॉइंट पे ज्वाइन कर देती है, इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. बिल्कुल सही है. सेंटर से लेके और सर्कल पे कहीं पे भी जो ज्वाइन करती है लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? वी यूज टू कॉल इट एज रेडियस. फाइन. नाउ अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स. क्या किसी सर्कल के पास फाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स हो सकती है? हम कितनी भी कोड्स उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सर्कल. सो दिस इज नॉट ट्रू, है ना. कोड्स तो हमारे हिसाब से हम बहुत कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं. अगर हमें 1 की नीड है 1 करेंगे, हमें 10 की नीड है तो हम 10 कर लेंगे. इट डिपेंड्स. इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज ए मेजर आर्क. जब इक्वल बोल दिया तो मेजर और माइनर तो क्या रह गया? इक्वल बोलने का मतलब तो सबकी लेंथ बराबर ही होगी ना. मेजर मतलब कोई बड़ा छोटा होगा ही नहीं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ. इफ़ वी हैव ड्रॉन अ सर्कल और उसको 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिया. 1 आर्क, सेकेंड आर्क, दिस इज 1 आर्क,
दिस इज सेकेंड आर्क, दिस इज थर्ड आर्क, और बोल रहे हैं वो इक्वल आर्क है, तो क्या हम किसी को मेजर आर्क माइनर आर्क बोल सकते हैं? नो, दिस इज फॉल्स, क्योंकि लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल, सो दिस इज अगेन फॉल्स। अ कोड ऑफ ए सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, आपके पास वो कोड जो रेडियस की ट्वाइस हो जाती है उसका नाम डायमीटर होता है, दैट इज़ ट्रू, हमने किया था ना। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का हाफ, सॉरी रेडियस का डबल होता है, प्लस वो एक कोड भी होता है, सो आप इसके लिए क्या लिखेंगे? दिस इज ट्रू। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, देखो सेक्टर कौन सा रीजन था आपके पास? सेक्टर रीजन था रेडियाई और आर्क के बीच में, और वो हमें क्या बोल रहे हैं? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड द आर्क, दिस इज फॉल्स। कोड की जगह पे क्या वर्ड रिप्लेस होना चाहिए था? रेडियाई शुड कम, सो दिस इज फॉल्स। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, सर्कल आपके पास एक प्लेन फिगर है विच इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ इन अ प्लेन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके स्टूडेंट, दिस वॉज वेरी इजी एक्सरसाइज, और आज हमने बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स क्लियर्ड इन योर माइंड। If not, please let me know in the comment section. We will meet in the next video. Before going, I just want you to press the likes, share and subscribe button if you really find it useful for you. Share it with your friends. Those who are not with you right now, you may help them also. Fine. We will meet in our next video. Till then, I must say goodbye and take care of yourself.